That is, urine analysis include urine analysis results include proteinuria, many RBCs, red blood cell count, WBC, per high power field. Which of the following diseases best fit with this finding? तो इस फाइंडिंग के साथ कौन कौन सी डिजीज़ है जो बेस्ट फिट होती है? नंबर वन इज़ अक्यूट सिस्टाइटिस। अक्यूट सिस्टाइटिस बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अक्यूट सिस्टाइटिस के केस में सिर्फ और सिर्फ WBC होंगे, RBC नहीं होंगे, प्रोटीन यूरिया नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा WBC के सिस्टाइटिस के केस में नाइट्राइट्स होंगे। लाइकली अगर अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस है तो उसके अंदर भी प्रोटीन यूरिया नहीं होगा, RBC कास्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ WBC होंगे। क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर जो सा है वैक्सी कास्ट होती है। ठीक है, तो ये क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस भी नहीं होगा। उसके बाद है मिनिमल चेंज डिजीज़। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन यूरिया होता है, RBC और WBC नहीं आते, तो ये मिनिमल चेंज डिजीज़ भी नहीं है। और बाकी रह गया हमारे पास एक ऑप्शन, दैट इज़ PSGN। तो लास्ट और करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा PSGN। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, रेड सेल कास्ट इन द यूरिन वुड बी कंपैटिबल विद रेड सेल कास्ट यूरिट्रल कैलिकुलस के अंदर RBC हीमाचूरिया हो सकता है लेकिन कास्ट नहीं आएगी। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इसमें भी हीमाचूरिया हो सकता है, कास्ट नहीं आएगी। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर ग्रैन्युलर कास्ट होती है। ठीक है, ग्रैन्युलर कास्ट। उसके बाद फॉरेन बॉडी इन द यूरिनरी ब्लैडर, वो भी हीमाचूरिया का कॉज कर सकती है, कास्ट नहीं बनाएगी। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स एंटीबॉडी इंड्यूस रीनल लीजन। दैट इज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ अगर बनेंगी तो ग्लोमेरुलाई डैमेज होंगे। ग्लोमेरुलाई डैमेज होंगे तो वहाँ पे RBCs एक्यूमुलेट करेंगे दैट विल प्रेजेंट एज RBC कास्ट। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 23, that is, in adult polycystic disease, each of the following statement is true except number one, the disease is familial. Yes, it is true. The renal involvement is occasionally unilateral. No, the renal involvement is bilateral. This is false. C आ जाएगा, the disease is generally asymptomatic until early adulthood. That is true. Hematuria, hypertension and palpable abdominal mass is true. Autosomal dominant inheritance is true. So correct option is B. That is the false statement. Question number 24. The majority of the patient with acute post-streptococcal glomerulonephritis die from congestive heart failure. No, that's not the case. Die from renal failure in few weeks. No, that's not the case. Pass through a latent period. ऐसा भी कुछ नहीं होता है. प्रोग्रेस थ्रू सब एक्यूट फेस, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है. दे यूजली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली. ई इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25, histopathological glomerular lesion which can present strongly and which when present strongly suggests diabetes mellitus. So histopathological glomerular lesion that strongly suggests diabetes mellitus. It is Kimmel-Steele-Wilson's nodule. Kimmel-Steele-Wilson's nodule या उसका दूसरा नाम है nodular glomerulosclerosis. So the correct option is E. Question number 26. Membranous glomerulopathy and post-streptococcal glomerulonephritis are similar in that they both are self-limiting and transient renal disease. No, only PSGN is self-limiting. जो membranous glomerulopathy है that eventually leads to chronic renal failure. वो chronic renal failure की तरफ बात चली जाती है. PSGN usually resolves. B है are commonly associated with nephrotic syndrome. Only membranous glomerulopathy is associated with nephrotic syndrome. एंड PSGN का नेफ्रोटिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं. कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, ओनली
PSGN is seen in children. Have glomerular immune complex deposits? Yes, they both have glomerular immune complex deposit. जो membranous nephropathy है इसके अंदर सब epithelial deposits होते हैं और ग्लोमेरुलर PSGN के अंदर भी सब epithelial deposits होते हैं. occur frequently following an infectious disease. Only PSGN occurs after an infectious disease. जो membranous glomerulopathy है उसके दूसरे risk factors हैं. तो the correct answer is E. Question number 27. Nephrotic syndrome is characterized by. जब भी आप word nephrotic सुनो, whenever you come across this word, that is nephrotic syndrome, always think of proteinuria. ठीक है, always look for proteinuria. Nephrotic syndrome, proteinuria. Nephrotic syndrome, proteinuria. तो nephrotic syndrome is characterized by proteinuria. There it is, proteinuria. अब सिर्फ यही ऑप्शन है जिसके अंदर proteinuria और ये ऑप्शन है जिसके अंदर proteinuria. तो बाकी फीचर्स क्या हैं? एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, ये नेफ्रोटिक के अंदर होते हैं. नेफ्रोटिक के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होती और हीमाचूरिया नहीं होता. दैट्स व्हाई ए इज़ नॉट विजिबल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Question number 28. All of the following are true of renal stone except. All of the following are true about the renal stone except. About 80% of the renal stones are composed of calcium oxalate. Yes, it is true. Urinary tract infection due to Proteus vulgaris. It is true. Leukemia may lead to formation of uric acid stone due to rapid cell turnover. Yes, it is true. Next is lack of Tom Horsfall protein in urine favors stone formation. इसको हम बाद में देखते हैं. हाइपरकैल्सीमिया में लीड टू स्टोन फॉर्मेशन. जस्ट इट इज़ ट्रू. ठीक है, लेट से आपको नहीं पता कि टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन क्या चीज़ है, तो आपको पता है 4 ऑप्शन जो से हैं दे आर डेड श्योर कि वो ठीक हैं, ये गलत नहीं हैं, दे आर ट्रू. तो बाय द मेथड ऑफ एक्सक्लूजन आपके पास जो रह जाएगा दैट इज़ ऑप्शन डी एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन क्या होती है? दिस इज़ अ प्रोटीन दैट अकर्स इन बॉडी एंड इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द स्टोन फॉर्मेशन. ठीक है, इट एक्चुअली प्रिवेंट्स एंड इनहिबिट्स द स्टोन फॉर्मेशन. तो आम तौर पे जब इसको यूरिन में डिटेक्ट किया जाए तो इट मीन्स अगर टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन को यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया जाए तो इट मीन्स दैट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ स्टोन समवेयर थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक. तो यूरिनरी ट्रैक में कहीं ना कहीं कोई स्टोन पड़ा हुआ है अगर टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन जोन सी है इसको यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया जाए तो. Question number 29, that is thyroidization is characteristic feature of the one and only chronic pyelonephritis. The one and only chronic pyelonephritis. ठीक है, इसका फीचर होता है थायराइडाइजेशन. थायराइडाइजेशन बिल्कुल थायराइड कि अगर आपको हिस्टोपैथ का पता हो तो किडनी की जब आप डाइसेक्शन करते हो और किडनी का आप सैंपल लेते हो तो बिल्कुल थायराइड हिस्टोपैथोलॉजी नज़र आ रही होती है. दैट वाई दैट इज कॉल्ड एज थायराइडाइजेशन और इट ओनली हैपन्स इन क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस. करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 30. डबल कंटूर और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दैट इज सीन इन मेम्ब्रेनो-प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती तो उधर स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस होना था. ठीक है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस. मेम्ब्रेनो-प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट इज डबल कंटूर और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. Correct option is C. Question number 31. In urinary bladder carcinoma, invasion of muscularis propria shows which of the following stages according to TNM classification, that is T2. Correct option is B. Question number 32. Deposition of IgG on or in the glomerular basement membrane. Glomerular basement membrane पे IgG की attachment is seen in all except one. दैट इज़ मिनिमल चेंज डिजीज़. मिनिमल चेंज डिजीज़. ठीक है, मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या मिनिमल चेंज डिजीज़ इसका करेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि बाकी सारे के सारे ऑटो इम्यून हैं, इम्यून मीडिएटेड हैं. ये वाहिद डिजीज़ है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन नहीं होती. अगर आपने पैथोमा पढ़ी है, पैथोमा पे
पेज नंबर 128, पॉइंट नंबर ई, क्लियर कट लिखा हुआ है, देयर इज नो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अंदर भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स होते हैं, इसके अलावा ल्यूपस नेफ्राइटिस में भी होते हैं, गुड पॉस्चर में भी होते हैं, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर भी होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, flea bitten appearance is characteristic feature of malignant nephrosclerosis. Malignant nephrosclerosis, that is the correct option. It usually occurs in hypertension के cases के अंदर जब किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, that usually leads to flea bitten appearance. ये पैथोमा पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे हाइलीन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। इट इज़ पेज नंबर 69, पैथोमा आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस में ऑनियन स्किन अपीयरेंस होती है, और इसका पॉइंट नंबर 3 है जिसमें फ्ली बिटन अपीयरेंस की बात की हुई है। सो दैट इज़ मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी। Question number 38. A patient with hematuria, flank pain, fever, dysuria. If infection is suspected, then diagnosis is confirmed by using culture. अगर इस पेशेंट को यूटीआई है और इन्फेक्शन है तो सिंपली स्पीकिंग उसका यूरिन कल्चर करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो उस कल्चर पे ग्रो कर जाएगा, एंड वी विल गेट टू नो एंड वी विल कंफर्म आवर डायग्नोसिस दैट इट इज़ एन इन्फेक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 35. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सब कुछ हो सकता है लेकिन एक चीज़ नहीं होगी. हैवी प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगा, जनरलाइज्ड एडीमा होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होगा. नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? हाइपरटेंशन नहीं होगी. हाइपरटेंशन इज अ फीचर ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 36. 50-year-old male develops acute renal failure, dark urine 1 week after flu-like illness. रीनल बायोप्सी पे क्या नज़र आएगा? ये केस जा रहा है PSGN की तरफ, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्रीसेंट अपीयरेंस आती है जब आप रीनल बायोप्सी करते हो. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 37. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू of membranoproliferative glomerulonephritis except prognosis is poor. Yes, it is poor. Type 1 is more common than type 2. Yes, that is true. Microorganisms are usually isolated from the affected glomeruli. No, that is false. Microorganism नहीं मिलते membranoproliferative के अंदर. ठीक है. Option D, both of MPGN show proliferation of mesangial and endothelial cells. Yes, it is true. Tram-track appearance type 1 में होती है. Yes, it is true. Option C is the correct option. Question number 38. Biopsy of malignant neoplasm of urinary bladder. Urinary bladder का malignant neoplasm है, and you detect schistosoma hematobium. तो इसकी मौजूदगी के अंदर, शिस्टोसोमा हिमाटोबियम की मौजूदगी के अंदर कौन सा कार्सिनोमा मोस्ट लाइकली होगा? ये मैंने रिस्क फैक्टर गिनवाए थे पिछली वीडियो के अंदर, एंड इट इज़ अ रिस्क फैक्टर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. शिस्टोसोमा हिमाटोबियम इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Question number 39. The nephrotic syndrome is characterized by. Nephrotic syndrome always look for proteinuria. एक ही ऑप्शन है जिसमें proteinuria है, and that is the correct one. Proteinuria, edema and hyperlipidemia. Option C is correct. Question number 40. The normal clearance range of creatinine is, that is 80 to 120 milliliter per minute. Option B. क्वेश्चन नंबर 41. यूरिन एनालिसिस रिजल्ट्स इंक्लूड इन प्रोटीन यूरिया. बहुत सारे WBCs हैं, RBC कास्ट है, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC कास्ट है, 1-2 WBCs भी हैं. हाई पावर फील्ड के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कौन सी है? ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 42.
7-year-old child complains of swelling of ankle, और उसके बाद ही इज़ हैविंग पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग एंड जनरलाइज्ड एडिमा, उसका बीपी शूट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 130/80 है, पॉजिटिव फॉर प्रोटीन, नेगेटिव फॉर ब्लड एंड ग्लूकोज। और जब इसकी 24 आवर यूरिन कलेक्शन की, सो प्रोटीन यूरिया 5 ग्राम्स पर डे, दैट इज़ वन एंड ओनली मिनिमल चेंज डिजीज़। ठीक है, बच्चा है, बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ गई, प्रोटीन यूरिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम कब कहते हैं? जब प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हमें मिल जाए, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो बच्चों में सबसे कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सी है? मिनिमल चेंज डिजीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, द मोस्ट कॉमन etiological agent of acute pyelonephritis is none other than the notorious E. coli. E. coli सबसे commonly acute pyelonephritis करवाता है, ऑप्शन सी। Question number 44, the features of nephritic syndrome include all of the following except lipid cast. Lipid cast is a feature of nephrotic syndrome. ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके अंदर एक बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर आता है, ये शायद थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर चला जाए, लेकिन लिपिड कास्ट में एक करेक्टरिस्टिक फीचर आता है, दैट इज कॉल्ड एज माल्टीज क्रॉस। माल्टीज क्रॉस, MALTAESE, माल्टीज, एंड क्रॉस CROSS क्रॉस। तो क्वेश्चन 44 ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 45, the causes of secondary hypertension include all of the following except option A, renal artery stenosis, yes it is. Adrenal cortical carcinoma, yes, adrenal cortical carcinoma cortisol कराएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी, और बाकी सारे के सारे जो एड्रेनर्जिक हार्मोन्स हैं वो भी निकलेंगे, बाकी हार्मोन्स निकलेंगे तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके बाद क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस, यस, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस में हाइपरटेंशन हो सकती है। रीनल आर्टरी फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, यस इट कैन कॉज। मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर हाइपरटेंशन, मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर हाइपरटेंशन हो जाती है, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होती। क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर डिस्यूरिया होगा, फीवर होगा, बाउट्स ऑफ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, बार बार एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के अटैक्स होंगे, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर अभी हमने ये सिनेरियो पढ़ा है, ये वाला सिनेरियो, ये 42, तो इसके अंदर पेशेंट को माइल्ड हाइपरटेंशन है, इतनी हाइपरटेंशन नहीं होती जितनी नेफ्रेटिक के अंदर है, लेकिन माइल्ड हाइपरटेंशन है। सो मिनिमल चेंज डिजीज इज नॉट द ऑप्शन। Option C is correct. Okay, question number 46, a patient with hemoptysis and renal failure actually reveals crescentic proliferative glomerulonephritis, और वहाँ पे आपको IgG और C3 डिपॉजिट्स मिले हैं, IgG एंड C3 डिपॉजिट्स। ओके, अब अगर आपको गुड पासर सिंड्रोम याद है जो मैंने पहले पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था हीमाचूरिया एंड हीमोप्टोसिस अगर आपको कभी साथ मिल जाएं, इट इज़ मोस्ट लाइकली गुड पासर सिंड्रोम। ठीक है, इट इज़ मोस्ट लाइकली गुड पासर सिंड्रोम। अब इस सिनेरियो में आप गुड पासर सिंड्रोम तक कैसे पहुंचोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको क्रिसेंटिक अपीयरेंस नज़र आ गई है। ठीक है, क्रिसेंटिक अपीयरेंस जैसे ही आपको नज़र आएगी, आपके माइंड के अंदर वो वाला टेबल दौड़ जाना चाहिए, आपके माइंड के अंदर पैथोमा वाला टेबल दौड़ जाना चाहिए जिसके अंदर उन्होंने क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो उसमें एक लीनियर एंटीबॉडिक पैटर्न है, एक ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न है, और एक नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस ही है। तो उसमें से सिर्फ एक ही डिजीज़ है जिसके अंदर हिमोप्टोसिस होती है। ठीक है, दैट इज़ गुड पासर सिंड्रोम। गुड पासर सिंड्रोम के अलावा जितनी भी नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स हैं उनके अंदर हिमोप्टोसिस नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, वरना ये प्रेजेंस ऑफ IgG एंड C3 ऑन बायोप्सी ये डायग्नोस्टिक है। हिमोप्टोसिस, क्रिसेंट अपीयरेंस ऑन रीनल बायोप्सी और IgG C3, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ गुड पासर।
लेकिन अगर आपको इस तरह नहीं याद तो इस तरह याद कर लो कि क्रिसेंटिक अपीयरेंस है तो इट वुड बी वन ऑफ दी वो वाली वन ऑफ दी जो रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप्स हैं, तो उनमें से ये कोई ना कोई एक टाइप होगी। अब उन टाइप्स में से सिर्फ एक ही टाइप है जिसमें हेमोप्टोसिस होती है, एंड दैट इज गुड पॉस्चर सिंड्रोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑप्शन out of the following is best suited or closely linked with papillary necrosis in kidney, that is analgesic nephropathy, papillary necrosis। papillary necrosis में analgesic nephropathy is actually, just a minute, give me some time। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं एक आध चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। मुझे लगा ये एंड वाला ऑप्शन नहीं है, मैंने इसको नहीं पढ़ा। पेपिलरी नेक्रोसिस जौन सा है उसकी कॉजेज़ हैं कुछ, मैं पैथोमा से रीड करने लगा हूँ कॉजेज़। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है क्रॉनिक एनाल्जेसिक अब्यूज़, डायबिटीज़ मेलिटस इन ऑन नंबर 2, नंबर 3 सिकल सेल डिजीज़, एंड नंबर 4 इज़ क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो फीचर्स हैं, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स एंड दीज आर द कॉजेज ऑफ पेपिलरी नेक्रोसिस। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। तो मेरे माइंड में चल रहा था कि मोस्ट कॉमन कॉज की बात हो रही है, दैट्स वाई आई सेड एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, वरना ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं दीज आर द कॉजेज ऑफ पेपिलरी नेक्रोसिस। सो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 48, a 10-year-old female presented with a history of sore throat, okay, followed by hematuria, azotemia. What is the most likely organism in this case causing nephritic syndrome? Beta hemolytic streptococci. ठीक है, beta hemolytic streptococci. Question number 49, a 12-year-old boy presents with hematuria. Urine analysis actually shows RBC cast. The boy also complain of mild hearing impairment and decreased visual acuity. तो इस बीमारी के अंदर बड़े मज़े के फीचर हैं कि इसके अंदर रीनल इन्वॉल्वमेंट भी है, इसके अंदर ईयर इम्पेयरमेंट भी है, और इसके अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट भी है। ठीक है। ये तीन फीचर जब इकट्ठे हो जाएं किसी बच्चे के अंदर, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम। ठीक है। इसका बड़ा करेक्टरिस्टिक निमोनिक है कांट पी, कांट सी, कांट हियर अ बी। कांट पी के रीनल इन्वॉल्वमेंट है, कांट सी विजुअल इन्वॉल्वमेंट है, एंड कांट हियर अ बी और हियरिंग इम्पेयरमेंट है। सो दीज थ्री फीचर्स व्हेन दे कम टुगेदर, कांट सी, कांट पी, कांट सी, कांट पी, कांट हियर अ बी, सो दीज आर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एल्पोर्ट सिंड्रोम। अगर ये तीन फीचर किसी बच्चे में पाए जाएं तो, ठीक है, these are the characteristic features of Alport syndrome. There it is, the Alport syndrome. Question number 50, a 5-year-old presents with tea colored urine, oliguria, periorbital edema. उसके बाद he had sore throat 2 weeks back. ASO titer was raised. Urine test is positive for blood, RBC cast. The most likely mechanism of this condition is immune mediated. इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है जिसकी वजह से ये सारी की सारी मामला PSGN होता है। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, इन मिनिमल चेंज डिजीज ऑफ किडनी द प्रिंसिपल लीजन इज इन विजरल एपिथेलियम। विजरल एपिथेलियम में पॉडोसाइट्स होते हैं, और पॉडोसाइट विजरल एपिथेलियम से ही पॉडोसाइट्स बनते हैं, और वो पॉडोसाइट्स फिर फ्लैट हो जाते हैं। दैट विल लीड टू अ मिनिमल चेंज डिजीज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, ए 8-year-old man presents with moderate proteinuria and hypertension. Okay. Histological section of kidney biopsy actually reveal a combination of normal appearing glomeruli and occasional glomerular, just a minute, normal appearing glomeruli भी हैं और occasional glomeruli भी हैं, ठीक है, that have hyaline deposits.
No increased cellularity or necrosis is noted. Additional there is cystic dilatation. Okay, cystic dilatation है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे फोकल फ्यूजन ऑफ पोडोसाइट्स इज सीन. इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर आपको ग्रैनुलर IgM डिपॉजिट्स मिल गए हैं. उसके बाद फर्दर वर्कअप में आपको NPHS2 जीन की म्यूटेशन मिल गई है. व्हाट इज़ द नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ दिस जीन? तो इस जीन का जो नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्ट है दैट इज़ नेफ्रिन. नेफ्रिन इज़ द आंसर. Question number 53. A 28-year-old man with the history of malaise and hemoptysis. Whenever there is renal involvement and hemoptysis, always think of Goodpasser syndrome. Always think of Goodpasser syndrome. इधर ही आपका डायग्नोस बन चुका है. यू नीड आपको बिल्कुल आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इधर आपका डायग्नोस बिल्कुल बन चुका है, लेकिन खैर हम पढ़ लेते हैं. Okay, hemoptysis with acute hemoptysis है and with acute onset of renal failure. लैब पे पता चला कि that there is increased serum creatinine and urea. N का भी नेगेटिव है, ANA भी नेगेटिव है. अच्छा, ANA और N का नेगेटिव करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पॉसी इम्यून है या जो नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंसी की डिजीज़ हैं, वैगनर्स ग्रैनुलोमाटोसिस, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और चर्ग स्ट्राउस डिजीज़, ये तीनों की तीनों एक्सक्लूड हैं. अगर इन तीनों में से कोई भी एक डिजीज़ होती तो ANA N का और ANA जोन सा इनमें से कोई एक पॉजिटिव होता. ठीक है, तो ये तीनों की तीनों डिजीज़ नहीं हैं. यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है. यूरिन एनालिसिस रिवील माइक्रोस्कोपिक RBC, ब्लड सेल्स. रीनल बायोप्सी की तो क्रीसेंट्स मिल गए विद इन ग्लोमेरुलर बोमेन स्पेस. डिपॉजिट्स इम्यूनोफ्लोरेसेंसी देखी तो IgG और C3 डिपॉजिट्स हैं अलॉन्ग ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज गुडपास्टर सिंड्रोम. एल्पोर्ट सिंड्रोम के फीचर्स मैंने आपको बता दिए थे. डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर नेफ्रोटिक फीचर्स आते होते हैं, ये सारे के सारे नेफ्रिटिक फीचर्स हैं. और डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर हीमोप्टोसिस नहीं होता. ठीक है, और इसी तरीके से जब ANA और N का नेगेटिव दे दिए तो वैगनर्स और HSP हिनॉश कॉलिन परपुरा ये दोनों भी एब्सेंट हो जाएंगे. कि इन दोनों में से कोई भी एक होता या जो मैंने पहले भी बीमारियाँ गिनवाई उनमें से कोई होता तो N का या ANA पॉजिटिव होते. सो C इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 54. The biopsy of a malignant neoplasm in the urinary bladder having schistosoma hematobium. Schistosoma hematobium is a risk factor for squamous cell carcinoma. Schistosoma hematobium is a risk factor for squamous cell carcinoma. Option C. Question number 55. Acute nephritic syndrome is characterized by nephritic syndrome, hematuria. One and only. Option B. Question number 56. The most sensitive test to assess renal function is creatinine clearance. That is the most sensitive test. Most sensitive test to assess the RFTs, to assess the renal functions. Option E. Question number 57. A 10-year-old boy sustained 25% burns. 25% burns. फिर नेक्स्ट डे उसका BUN ब्लड यूरिन नाइट्रोजन इज 30 mg पर डेसीलीटर एंड क्रेटानिन इज 0.8 mg पर डेसीलीटर. IV फ्लूइड दिए एंड देयर इज़ नो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और यूरिनरी आउटपुट. उसके बाद यूरिनरी आउटपुट और ब्लड प्रेशर के अंदर कोई ड्रॉप नहीं आया. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अकाउंट फॉर BUN एंड क्रेटानिन वैल्यू. यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ यूरिया. दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं है. 25% बर्न है अगर पेशेंट को तो उसमें हाइपोवोलीमिया होगा. हाइपोवोलीमिया जो बर्न्स के पेशेंट होते हैं वहाँ से फ्लूइड एवेपोरेट कर जाते हैं. जब भी पेशेंट को बर्न इंजरी हो तो हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि इसके फ्लूइड्स एवेपोरेट ना कर जाएं, इसको फ्लूइड लॉस ना हो जाए, इसको हाइपोवोलीमिया ना हो जाए. तो बर्न के पेशेंट आर हाईली लाइकली टू गो इनटू अ हाइपोवोलीमिक शॉक. ठीक है, तो 25% बर्न्स हुए हैं इसको, दैट इंडिकेट्स कि इसको हाइपोवोलीमिया है. अब जब भी इस बात को आपने अपने पल्ले से बांध लेना है, जब भी BUN और क्रिएटिनिन की रेशो
20 से ज़्यादा हो जाए, बीजू एंड क्रेटानिन रेशो 20 से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब होता है प्री रीनल इंजरी। ठीक है, प्री रीनल इंजरी, या इसको कह सकते हो प्री रीनल एजोटीमिया। तो जब भी बीजू एन और क्रेटानिन की रेशो 20 से ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है देयर इज़ प्री रीनल एजोटीमिया एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली हाइपोवोलीमिया। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी इज़ द कॉज। जब भी बीजू एन टू क्रेटानिन रेशो मोर देन 20 होगी, मोस्ट लाइकली इट इज़ द हाइपोपरफ्यूजन दैट इज़ कॉजिंग एजोटीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बीजू एन की वैल्यू है 30 और क्रेटानिन की वैल्यू है 0.8, तो ये 20 से बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये 20 से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसकी वैल्यू। ओके, लेट अस सी, देख लेते हैं कितनी होती है। यह है 37.5, सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एजोटीमिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिव है कि यहाँ पे पेशेंट सफ़र कर रहा है फ्रॉम डिक्रीज रीनल परफ्यूजन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ए। 57 आंसर इज़ ए। जब भी बीजू एंड क्रेटानिन की रेशो 20 से ज़्यादा हो, इसका मतलब यह है देयर इज़ प्री रीनल एजोटीमिया एंड मोस्ट लाइकली इट इज़ हाइपोपरफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 58, ए 6-year-old बॉय विद फीवर और एब्डोमिनल मास है दैट हैज़ ग्रोन रैपिडली ओवर द लास्ट 4 month। पेशेंट का वेट लॉस भी हुआ है, अल्ट्रासाउंड पे आपको एक सॉलिड स्पेस मिल गई है जो कि किडनी के अंदर है। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन किडनी ट्यूमर इज़ विल्म्स ट्यूमर, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट